Okay, Atul, thank you very much for giving us the details once again. And now, viewers, let's shift our focus. Viewers, Taslima Nasreen, the exiled Bangladeshi author and human rights activist, is set to return to Kolkata nearly 2 decades after she was forced to leave the city following violent protests over her writings. The 63-year-old writer had to flee Kolkata after protests erupted over allegations of blasphemy in her autobiographical book. The then CPM-led government banned her book. The author, who lived in Kolkata between 2004 and 2007, now resides in Delhi on a long-term residence permit. Cut to 2026, she is scheduled to attend a program protesting fundamentalism at Rabindra Sadan on the 1st of August. This will be her first visit to the city since 2007, following a collective invitation from 3 organizations. Let's listen in to how the Bengali leaders are first reacting to her return. ভালো আপত্তি নেই কিছু হ্যাঁ আমাদের কোনো আপত্তি নেই সরকার দেবে কিনা সেটা দেখবে তাসলিমা তো আর আমাদের পার্টির লোক নয় উনি একজন স্বাধীন সাহিত্যিক সুতরাং তিনি আসবেন মনে করলে সরকার যদি তাকে প্রোটেকশন দেয় আসবেন তিনি তো ওখানে যে হিন্দু নিপীড়ন যে অত্যাচার শিকার তা নিয়ে তিনি লজ্জা লিখেছিলেন সেই বই আবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাজেয়াপ্ত করিয়েছিলেন প্রকৃত সত্য যাতে না আসে সেটাও করেছিলেন ব্লক ভোটের স্বার্থে তা কোনো লেখিকা আসবেন এখানে আমারই দাবি ছিল তিনি আসছেন স্বাগত তাকে बीजेपी जो प्रॉमिस करके अभी सत्ता में आया बोला था अन्नपूर्णा योजना के बारे में बिजली के बारे में या वुमेन सेफ्टी के बारे में जो जो प्रॉमिस करके आया था फेलियर है अभी तक भी फेलियर है ये फेलियर को थोड़ा फेलियर के लेके आदमी को माइंड को डाइवर्ट करना होगा कि तस्लीमा नसरीन जो Alright, viewers, those are the latest updates coming in. Now, Taslima Nasreen has been invited by 3 groups to attend the August 1 event in Kolkata. Remember, she will be returning after almost 2 decades. She was had to flee from Kolkata after protests erupted over allegations of blasphemy in her book Dwikhandito, which means divided. The CPM-led government had banned the author's book. She was living between 2004 and 2007 in India and now resides in Delhi on a long-term residence permit. She is now scheduled to attend a program protesting fundamentalism at Rabindra Sadan on August 1. Renik is joining us. Renik, फिर लौटती हुई नज़र आ रही हैं तस्लीमा नसरीन कोलकाता में किस प्रकार की तैयारी की जा रही है इस इवेंट के लिए? एकदम देखिए 19 साल बाद 2007 साल के बाद 2026 साल में फिर से तस्लीमा नसरीन जो है वो कोलकाता में आने वाले हैं। 1 अगस्त कोलकाता में एक इवेंट होने वाला है रविंद्र सदन में, उसी इवेंट पर पार्टिसिपेट करेंगे तस्लीमा नसरीन, ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया था। और तस्लीमा नसरीन की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया गया है कि 1 अगस्त कोलकाता में रविंद्र सदन में इवेंट अटेंड करेंगे, वो भी 19 साल बाद। 2007 साल में उनके तरफ से जो ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था उसके बाद एकदम सीपीएम गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑथर को बैन किया गया था और उस दौरान ही ऑथर का ये जो बुक को बैन करने के बाद ही इस ऑथर को बहुत सारे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था और उसी टाइम पर इतना प्रोटेस्ट भड़का था, उसी को देखते हुए 2007 साल में उनको कोलकाता छोड़ना पड़ा था। 2007 साल के बाद 19 साल बीत चुका है। 2026 में नया गवर्नमेंट आने के टाइम पर ही बीजेपी की तरफ से एकदम वादा किया गया था कि तस्लीमा नसरीन को देश में पश्चिम बंगाल में वापस ले आया जाएगा, कोलकाता में उनको वापस ले आया जाएगा। उसके बाद ही अभी देखने को मिल रहा है कि तस्लीमा नसरीन जो है वो कोलकाता में आ रहे हैं। 2 दिन का सफर है तस्लीमा नसरीन का, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 31 जुलाई को तस्लीमा नसरीन कोलकाता आएंगे।
कोलकाता में रुकेंगे, कोलकाता का एक होटल में वो रुकेंगे। उसके बाद 1 अगस्त रविंद्र सदन, कोलकाता का रविंद्र सदन, उस जगह पर एक प्रोग्राम अटेंड करेंगे। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वो चले जाएंगे। मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि करीब 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन फिर से कोलकाता आएंगे और एंटी फंडामेंटलिज्म बोलकर जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। जिस तस्लीमा नसरीन को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट भड़का था, 2004 से लेकर 2007 साल कोलकाता में रहते थे ये तस्लीमा नसरीन, और उस दौरान ही 2007 साल में उनके तरफ से एक बुक लिखा गया था। उस किताब लिखने के बाद ही, उस किताब जब पब्लिश हुआ, उस किताब को देखते हुए एकदम सीपीआईएम गवर्नमेंट की तरफ से उस किताब को बैन कर दिया गया था। उसके बाद ही तस्लीमा नसरीन को सामने रखते हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट भड़का था। पूरा कोलकाता और कोलकाता के आसपास में जो एरिया है उस जगह पर ये प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला था। पश्चिम बंगाल पे ये प्रोटेस्ट पूरा फैल गया था। उसके बाद ही तस्लीमा नसरीन को कोलकाता छोड़ना पड़ा था। और अभी नया सरकार आने के बाद फिर से एक उम्मीद देखने को मिल रहा है कि जो लोग इतने दिन से कोलकाता छोड़कर चले गए थे, तस्लीमा नसरीन जैसे ऑथर जो कोलकाता छोड़ के चले गए थे, वो अभी फिर से 19 साल बाद कोलकाता में लौट रहे हैं। जैसे कि एकदम ऑफिशियली कहा जा रहा है कि तस्लीमा नसरीन का ये जो शेड्यूल, ये जो उनके तरफ से सफ़र होगा 2 दिन का कोलकाता का सफ़र, इसको देखते हुए सिक्योरिटी इंतजाम भी किया गया है। तस्लीमा नसरीन को देखते हुए हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखा जाएगा, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर है। कोलकाता पुलिस का टीम को रखा जाएगा और उसके साथ साथ ही जो साइबर एक्सपर्ट उनको भी एक्टिव रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पर कोलकाता में देखने को मिला था कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है उसका सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज जो है वो भी देखने को मिलता है, और इसी वजह से साइबर एक्सपर्ट को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। उसके साथ साथ ही एक स्पेशल टीम का इंतजाम किया जा रहा है जिनकी तरफ से तस्लीमा नसरीन का जो प्रोटेक्शन उसके ऊपर नजर रखा जाएगा, ऐसा ही सूत्र के हवाले से खबर है। मगर इसको लेकर पॉलिटिकल चर्चा भी जोर जोर से चालू हो चुका है। एक तरफ सीपीआईएम की तरफ से तो इसका विरोध किया ही जा रहा है, उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना एक तरफ सीपीआईएम, दूसरी तरफ तृणमूल को किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल सरकार का ये जो 15 साल, इस 15 साल में भी तस्लीमा नसरीन को कोलकाता में वापस ले आने का कोई प्लानिंग इस तृणमूल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया था। तो इसी को देखते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार जिस तरीके से तृणमूल को घेरा जा रहा है, ये पूरा इशू को सामने रखते हैं, उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर बीजेपी को कहा जा रहा है कि बीजेपी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल रीजन पर तस्लीमा नसरीन को वापस जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और इसके पीछे बीजेपी फायदा उठाने का कोशिश करेंगे, ऐसा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और सीपीआईएम की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। मगर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में नया पश्चिम बंगाल, जिस पश्चिम बंगाल को बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि सोनार बंगाल तैयार किया जाएगा, वो सोनार बंगाल तैयार करने के और एक स्टेप ये देखा जा सकता है, ऐसा ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि तस्लीमा नसरीन जैसे ऑथर जो कि प्रोटेस्ट के वजह से एक सरकार के तरफ से उनका बुक को बैन कर देने की वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके वजह से उनको जो कोलकाता छोड़ना पड़ा था, वो तस्लीमा नसरीन फिर से 19 साल बाद बंगाल में वापस आ रहे हैं। यानी बंगाल में खुशहाली जो है, बंगाल में जो सिचुएशन, वो सिचुएशन इंप्रूव कर रहे हैं, ऐसा ही बीजेपी की तरफ से एक स्टेज किया जा रहा है। दैनिक जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। व्यूअर्स, वी आर स्लिपिंग इनटू अ क्विक कमर्शियल। थैंक्स फॉर वाचिंग न्यूज़ एक्स।